Good morning friends and welcome back to iShare नई सोच presents Trans India Real People Real Emotions। दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में अक्सर कहा जाता है कि एक बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है। ट्रांसपोर्टर्स का जॉब बहुत ही स्ट्रेसफुल है। एक तरफ आप अपने कस्टमर से डील करते हैं जो मे बी लीडिंग MNC कंपनीज हैं, और साथ ही साथ आप अपने ड्राइवर्स के साथ भी डील करते हैं। There are two ends of the spectrum and each has to be dealt with separately। और शायद इसीलिए रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आप ज़्यादा औरतों को नहीं पाएंगे। But times are changing with women empowerment coming to the fore। We see many transport companies having young women being part of transport companies handling various kind of operations, which includes dealing with customers, handling back-end operations, and also dealing with drivers, which is one of the toughest parts of the transport industry. In today's episode, we shall be talking to not one, but two women who joined the family business. Shivani Carriers was started by Hemant Ladda, and after a few years, he was joined by his wife Vandana. A few years later, he was joined by his daughter as well. The mother-daughter duo of Vandana and Pooja are handling various operations, taking off a lot of burden of Hemant's shoulders. Not only Vandana and Pooja, but Pooja's other cousins too have joined the family business, and together the company is growing and achieving new heights. These women are truly the flag bearers of iShare's Nai Soch, and today we are privileged to be talking to the mother-daughter duo of Vandana and Pooja. However, Vandana's journey has not been an easy one. She started coming to work when her son was only 2 years old. She recollects her earlier days and says she used to carry her 2-year-old son and travel by city bus to reach office. Those were the tough days, and today the company has grown. While we appreciate the efforts of Vandana and Pooja in taking the company to new heights, we must also not forget that Hemant gave them a free hand to work and was always there to guide them and support them. So friends, without much delay, let's dive into this very exclusive interview with Vandana and Pooja coming up right after this very short break. Keep watching iShare Nai Soch presents Trans India Real People Real Emotions। नमस्ते, मैं हेमप्रभा देवी हूँ। मैं आसाम से हूँ। 1996 से मैं ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हूँ। मैं मेरा ड्राइवर और उनका फैमिली से मेरा काम के लिए उनका साथ हमेशा जुड़ा रहती हूँ। और एक बार मेरा एक ड्राइवर मिडुल और उसका बेटा का बड़ा बुखार हो गया था। मिडुल की बीबी गीतांजलि समझदार थी। उसने हर महीने कुछ सेविंग कर रखी थी। एक एक करके 3 अलग डॉक्टर से कंसल्ट किया। इलाज लंबा चला और महंगा भी। वो अच्छे डॉक्टरों के पास प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेटे का इलाज कर पाई। हर माँ बाप चाहता है उनका बच्चा खुश रहे और हेल्दी रहे। मेरा दूसरा ड्राइवर नीलकंठ, उसका ब्रह्मपुत्र का बाढ़ में उनका घर पूरा खराब हो गया। उनका बीबी डालिमी ने थोड़ा थोड़ा करके हर महीने थोड़ा पैसा सेव किया था। वो बात नीलकंठ को पता ही नहीं था। उन्होंने घर को फिर से बनाया, दीवार को मजबूत किया, फर्श को मजबूत किया और फिर से घर बहुत अच्छा बना। ये 2 फैमिली का पास मुसीबत का टाइम पैसा का कोई कमी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मेरा भी थोड़ा सा हाथ है। मैं मेरा ड्राइवर का सैलरी उनका वाइफ को देती हूँ, क्योंकि वाइफ रेस्पॉन्सिबल होता है और सैलरी को सेविंग्स करता है। ये मेरा नया इनोवेशन है और ये मेरा नया सोच है। बिजनेस तभी बढ़ेगा जब सोच बदलेगी। क्या आपने भी कोई नई सोच अपनाई है? iShare naisoch.com पे हमें बताइए। याद है, कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था। लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है। डबल गारंटी। पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7, जो आता है डबल गारंटी के साथ। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो कर दीजिए ट्रक वापस। नया महिंद्रा फीरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद। खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी, तो हुई ना डबल गारंटी। Welcome back friends to iShare Nai Soch presents Trans India. Real people, real emotions. It is such a delight to be talking to the real people today. Welcome to the show Vandana ji and Pooja. Let me start with Vandana ji. Can you give us a background about the company, how it all started? ट्रांसपोर्टेशन हमारा फैमिली बिजनेस है। मेरे फादर इन लॉ ने इस बहुत सालों पहले पार्सल बुकिंग के रूप में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चालू की थी। 1995 में मेरे हस्बैंड ने शिवानी कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड इस्टेब्लिश की। 98 से हम लोग कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में आए और 2002 से हमने फ्लीट एक्वायर करना चालू किया। राइट नाउ वी आर हैविंग 170 प्लस व्हीकल्स ऑपरेटिंग फ्रॉम 15 सिटीज पैन इंडिया। आपकी शादी कब हुई, किस साल में? 1994 आई गॉट मैरिड। एंड आप बिजनेस में किस साल में? 2007। वंदना जी, आपकी शादी 1994 में हुई जैसे बताया आपने, और आपने बिजनेस ज्वाइन किया 2007 में। दैट इज व्हेन यू स्टार्टेड कमिंग टू वर्क। व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक दिस डिसीजन टू कम टू वर्क? एज आई टोल्ड यू 2002 से हेमंत ने फ्लीट एक्वायर करना स्टार्ट किया। जब मैंने 2007 में ज्वाइन किया तो 13 व्हीकल्स थे। उसके पहले ये था कि मैंने 2001 में कंप्यूटर सीखा, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की थी कंप्यूटर नहीं एजुकेशन में का पार्ट नहीं होता था। तो जब मैं कंप्यूटर सीख गई थी उस समय तक हेमंत ने कंप्यूटर नहीं सीखा था। तो छोटे छोटे ईमेल्स करना, वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाना, एक्सेल शीट बनाना, ये सारे काम घर पे मैं उनके साथ किया करती थी। धीरे धीरे उन्हें लगा कि मैं ये काम अच्छे से कर सकती हूँ। और फ्लीट को जब वो देख रहे थे, हमारे 13 ट्रक्स हो गए थे, तो उनको एज यू नो ट्रांसपोर्टेशन जो है एक बहुत अनऑर्गेनाइज बिजनेस है और उस समय तो इतना सिस्टम ड्रिवन भी नहीं था। बहुत सारा काम पेपर वर्क पे होता था। तो एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत उन्हें लगी और उन्होंने सोचा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। ये उन्होंने मुझे कहा कि दिन में 2-3 घंटे ऑफिस आ जाओ और ये काम संभाल लो। मैंने भी कहा कि ठीक है, मेरे पास फ्री टाइम है, काम करने का पैशन था, तो बस कर दिया शुरू। वंदना जी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करने के पहले इस इंडस्ट्री के बारे में आपका ओपिनियन क्या था? व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू केम टू वर्क? देखिए, मैं हेमंत के साथ तब तक मुझे 12-13 साल रहते हुए हो गए थे और फ़ोन हमेशा चलते थे और सुनती थी। उस समय तो ड्राइवर से सीधे हेमंत बात किया करते थे, तो ऐसा बहुत अच्छा इंप्रेशन तो नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कहाँ ड्राइवर से बात करनी है, मुझे तो बैक ऑफिस में बैठ के काम करना है। तो ठीक है, करते हैं। बस एक काम करने की ललक थी कि करना है, ये सोच के निकल पड़े थे। Pooja, you would have seen and heard dad and mom discussing work at home. I mean, transport industry is one industry where your work actually goes home with you. What is your opinion about them? They are very passionate about it, and that passion grew in me. Wow. Normally people don't say that. People say that इस business में आना ही नहीं है, but to them it's not like that. It's a very good business. So were you happy joining the family business, being part of this circus? Very happy, more than happy. Okay, this one is for both of you, Vandana ji and Pooja. Can you describe your first day at work? How was it like? अगर मैं अपना फर्स्ट डे रिकलेक्ट करूं तो आज जैसा ही बड़ा सा ऑफिस नहीं था, एक छोटा सा एक कैबिन के साइज़ का ऑफिस था। उसमें हेमंत थे, मैं थी, 2 स्टाफ थे और मेरे साथ मेरा 2.5 साल का बेटा था, जिसको मैं अपने साथ कैरी करती थी ऑफिस शुरुआती दिनों में। जब तक वो फुली एजुकेशन में फुल डे इन्वॉल्व नहीं हुआ तब तक वो मेरे साथ ऑफिस आता था। तो पहला दिन तो मुझे शायद सेटअप में ये हो गया कि मैं कहाँ बैठूंगी, बच्चे का सेटअप क्या रहेगा, यदि ये सोएगा खेलेगा तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या अरेंजमेंट्स है। पहला दिन तो उसी में बीत गया। Well, first day my father sent me to field and my role that day was to become loading in charge. Count the number of bags that were getting loaded, लेबर को मॉनिटर करना, लेबर फेंक नहीं रही है ट्रक में बैग्स। सो या आई स्टार्टेड फ्रॉम फील्ड बिकॉज माई फादर्स लॉजिक इज दैट इफ यू वांट टू गेट इन द बिजनेस देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच।
ये एक बहुत रेयर है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बेटियां भी अपने फादर या मदर का बिजनेस ज्वाइन करती है। यू आर अ वेरी रेयर एग्जाम्पल इन दैट केस। ये किसका डिसीजन था कि आप बिजनेस ज्वाइन करें? नहीं, it was her decision, but yes, of course, we offered that. We wanted her to be with us as she was out from since last 5-6 years for education purpose. तो हमने कहा कि काम करना है तो काम हमारे पास भी बहुत है, हम अच्छा वर्क एटमॉस्फेयर और खूब सारा चैलेंजिंग काम देंगे, तुम आ जाओ। लेकिन इट वॉज हर डिसीजन, हमने उसको उस पर इम्पोज नहीं किया। Okay, Pooja, you have seen dad, mom discuss business at home. You would definitely have received guidance from them as well. Who do you think is a better mentor for you, or who has been a better mentor for you? Okay, so I'll say that their field of operation is different. Mama works at back end and Papa works at front end. So they are both pros at their own field. So if I have some front end question, whether it's related to client management, communication, operations, I go straight away to Papa. And if I have some accounting question or some data entry, I go to Mama, and she's a pro at it. She just takes a second to answer my question, and even if I complete the question, before that she has her answer ready. Diplomatically 10 on 10. Well, Pooja, I have to give you 10 on 10 for diplomacy on that one. And on the diplomatic note, let's take a very short break. On the other side, we will be talking to Vandana and Pooja and knowing about the responsibilities and duties that they carry out in Shivani Carriers. Stay tuned, you're watching iShare Nai Soch presents Trans India. Real people, real emotions. ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ प्रभु ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ। पापा कहते हैं कि हमें ये खुशहाली और तरक्की अपने ड्राइवरों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली की जैसे ही हैं। आ गया बेटा? हाँ जी पापा जी। मेरे 4 बेटियां हैं जी। सबसे बड़ी है ये सनप्रीत, 16 साल की है। 11वीं में नॉन मेडिकल कर रही है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। मेरा सपना है कि ये इंग्लैंड या कनाडा जाके अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करे। I am preparing for IELTS English exam. I am working hard to make my father's dream come true. अरे वाह, देखा, ड्राइवर की बेटी अंग्रेजी बोल रही है। मैं जसपाल पाजी की कंपनी में कई साल से ड्राइवरी का काम कर रहा हूँ। हमारे दोनों बच्चों की फीस जसपाल पाजी देते हैं। हम उन्हें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी बड़ी होकर इंजीनियर बने। हमारे दोनों की फैमिली में लड़की तो क्या, लड़का भी इंजीनियर नहीं है। हम चाहते हैं हमारी बेटी बड़ी होकर इंजीनियर बने, इसी में हमारी खुशी है। ड्राइवरों के बच्चों की स्कूल फीस देना, यही मेरी नई सोच है। बच्चे कुछ पढ़ लिख जाएंगे तो कल कुछ बनेंगे और उनके परिवारों की तरक्की होगी, और इसी में हमारी खुशी है। बिजनेस तभी बढ़ेगा जब सोच बदलेगी। क्या आपने भी कोई नई सोच अपनाई है? iShare naisoch.com पे हमें बताइए। याद है, कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था। लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है। डबल गारंटी। पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7, जो आता है डबल गारंटी के साथ। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए ट्रक वापस। नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद। खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी। तो हुई ना डबल गारंटी। Welcome back friends to iShare Nai Soch presents Trans India. Real people, real emotions. We are in conversation with Vandana and Pooja Ladda of Shivani Carriers. So Pooja, what are the current operations that you're currently managing in the company?
Well, I am a key account manager of 3 of our clients. So A to Z operations of theirs, whether it's vehicle placement, it's meeting the targets, or it's back-end work related to billing and some new operations, some new work requirement, negotiation. So yeah, A to Z working operations of 3 clients. वंदना जी, आप कौन सी ऑपरेशंस हैंडल करती हैं? मैं HR, ड्राइवर मैनेजमेंट और अकाउंटिंग फिनेंस, पूरा बैक ऑफिस जितना भी ये मेरा स्टाफ आप देख रहे हैं, इनको सबका काम मैं सुपरवाइज करती हूँ। और मेनली जो मेरा पैशन है वो ड्राइवर मैनेजमेंट, ड्राइवर परफॉर्मेंस, उस पर मैं पूरा फोकस करती हूँ। वंदना जी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ड्राइवर से डील करना जो है एक बहुत ही मुश्किल काम है। आपका अनुभव कैसा रहा है ड्राइवर से डील करने का, और उसके फ़ायदे क्या हुए हैं? गिरीश, आप यू मस्ट बी अवेयर कि मैं फर्स्ट एम्पावर, महिंद्रा एम्पावर जो आया है अहमदाबाद में 2013 में हुआ था, उसकी फर्स्ट बैच में मैं गई थी और मैं काफ़ी डरी सहमी सी गई थी। कहना चाहिए कि मुझे बहुत कम एक्सपीरियंस था। वहाँ जाके मैं अपने जैसे 30 लोगों से मिली, कहना चाहिए एक्सपर्ट्स से मिली, प्रोफेसर्स से मिली। उसके बाद मेरे सामने एक बहुत बड़ा आसमान खुल गया, एक काम करने की ललक उठी और बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी समझ में आई कि हमारी कंपनी में ये चीज़ें कोई भी नहीं देखता है। उसमें से एक था ड्राइवर मैनेजमेंट। और मेरे वहाँ से आने के कुछ ही दिनों बाद एक दिन मीटिंग हो रही थी, हेमंत बात कर रहे थे हमारे ट्रैफिक मैनेजर्स से कि ड्राइवर्स को कैसे मोटिवेट किया जाए और कैसे उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जाए। तो जो बातचीत उसमें मैंने शामिल होते हुए कुछ विचार रखे और मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को मैं लीड करना चाहती हूँ। और हेमंत ने मुझे विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे यस बोला। और उस तब से जब मेरा पहली बार ड्राइवर से 1-to-1 मिलना चालू किया, तो आज 8 इयर्स करीब हो गए हैं। मैं ड्राइवर्स से बराबर मिलती रहती हूँ और क्या चल रहा है, क्या समस्या आ रही है, वो सब देखती रहती हूँ। और मेरे इस इंटरेक्शन से कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ है। वंदना जी, आपने ड्राइवर्स के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उससे कंपनी को क्या फ़ायदे मिले हैं? ड्राइवर रिटेंशन इज़ द मेन बेनिफिट, आई मस्ट से। और ड्राइवर्स को लगता है कि मालिक हमें जानता है, हमारी बात सुनते हैं। बेझिझक मेरे पास, मेरे कैबिन में आके अगर उन्हें कोई समस्या हो तो मुझे बोलते हैं और मैं बड़ी शांति से सुन के उसको सुलझाने का प्रयास करती हूँ। तो ये चीज़ जो है वो एक विश्वास मैंने जीता है उनका कि हमारी यहाँ पे सुनवाई होती है और सबसे बड़ी चीज़ हमें इज्जत दी जाती है। ये विश्वास उनमें आया है। How many drivers do you currently have, and do you face shortage of drivers as many other companies do? As I told you, 170 प्लस व्हीकल्स हैं हमारे, तो इतने ही ड्राइवर्स हैं हमारे फ्लीट में। वी आर ब्लेस्ड इन दैट। मैंने एक कॉमन सेइंग है हमारी इंडस्ट्री में कि 10% ऑफ द फ्लीट लैक ऑफ ड्राइवर्स आइडल रहता है, लेकिन हमने वो चीज़ कभी भी फेस नहीं की है। टचवुड, कभी भी ऑफ रोड व्हीकल हमारे यहाँ ड्राइवर की कमी के कारण नहीं होते हैं। और मेरे ख्याल से इसके बेसिक रीज़न है गुड वर्क एनवायरनमेंट, गुड सैलरी एंड एक अच्छा व्यवहार जो हम ड्राइवर्स को हमेशा देने की कोशिश करते हैं। Pooja, do you also interact with drivers? Yes, of course. When I joined the company 3 years back, so whenever drivers visit our head office along with Mama, I sit with them and we discuss work as well as their personal lives. What is going in their personal lives, how many kids do they have, what is their age, their education, and if we can do anything for their education, we support them. And yeah, we try to discuss their personal life more because that is how we can connect with them. गिरीश, एक चीज़ मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। 2018 दिवाली पे हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि 300 किलोमीटर्स रेडियस में जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं हम उनके घर पे जाएंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स से मिलेंगे और एक दिवाली हैम्पर, मिठाई और गिफ्ट्स का उनको देंगे। तो मैं एक डायरेक्शन में मैं गई थी। मैंने एक दिन सुबह से शाम में 20 ड्राइवर्स कवर किए थे। एक भोपाल वाले डायरेक्शन में हेमंत और पूजा गए थे, इन्होंने भी 15 करीब ड्राइवर्स के घर ये लोग गए थे। और दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमें पता लगा कि हमारे ड्राइवर्स किन स्थितियों में रहते हैं, कैसे रहते हैं। प्लस जो बहुत अच्छे थे उन्होंने हमारा आभार भी माना कि आज इतने सालों से हम
आपसे जुड़े हुए हैं, तो देखिए बच्चे मेरा बच्चा ये पढ़ रहा है, मेरा बच्चा ये पढ़ रहा है, सब आपसे जुड़े होने के कारण ही है। So, Pooja, what were your takeaways after visiting the House of Drivers? What was your experience like? Yes, the memorable one was that is the first time in my life I had tea. Because for drivers and in fact the people who are in this transport industry, tea is very important. But apart from that, they were very humble and they respected. Their way of talking was really polite, and they accepted that yes, we are a part of them. So that was really nice. Yes, Girish, that was the day when I got a feeling of satisfaction, and I must say कि बहुत और भी पैशन आया कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं और इसको और अच्छे से करना है। Very true. In fact, मैंने भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद ही चाय पीना शुरू किया। और ये ऐसी आदत लगी है, डेली कंजम्पशन इज एटलीस्ट 20। Touch wood, I haven't. उस दिन मैंने भी शायद 20 ड्राइवर के यहाँ 20 बार चाय पी थी। Pooja, how was the acceptance from the staff, knowing a young girl joining the business who is also the boss in a way? How was that experience? Well, acceptance before, like if I talk about 10 years back, I used to hear from Mama that when she joined, the acceptance was not satisfactory. They were a little hesitant. But when I joined, I guess Mama created her aura over here. So yeah, I didn't feel any reluctance from them that they are not able to accept that I am here. Their boss's daughter is here to supervise them. एंड गिरीश, हमने इससे बेस लेवल से ही काम कराया, ये सीधे उनकी बॉस बन के आके नहीं बैठी है। दैट में बी ऑफ वन फैक्टर आल्सो। Makes a lot of difference. What significant changes do you see in the business between then and today? देखिए, अब तो पूरा बिजनेस जो है वो IT ड्रिवन हो गया है। अब अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। पूरा बिजनेस टेक्नोलॉजी और AI ड्रिवन हो गया है। GPS, ई-वे बिल, GST और फास्टैग, इन चीज़ों ने स्टोरी ही बदल दी है। तो जिनको जीतना है इसके साथ तो चलना ही पड़ेगा। As you rightly said, GST and e-way bill have been game changers for the industry, and many organizations have really had to up the ante to meet these norms. What has been the benefits to your organization? देखिए, ई-वे बिल का अगर देखती हूँ तो ट्रांजिट टाइम पे बहुत इम्पैक्ट आया है। जो घंटों बॉर्डर्स पे एंट्री, सेल्स टैक्स बॉर्डर पे एंट्री कराने के लिए गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, अब सब डिजिटलाइज होने के कारण वो समय बच गया है। तो हमारे ट्रांजिट टाइम में फ़र्क आया है, तो नेचुरली पूरे बिजनेस पे फ़र्क आता है उस चीज़ का। और GST की बात करूँ तो वी आर नाउ मोर ऑर्गेनाइज्ड। हम मंथली रिकनसाइल कर सकते हैं, चीज़ों को पता लग सकती हैं, और GST के जो इनपुट क्रेडिट के बेनिफिट्स हैं वो भी हम ले रहे हैं। तो GST भी मेरे हिसाब से तो हमें बहुत बेनिफिट दे रहा है। You just recently moved from RCM to FCM. What was the reason behind this, and how has this benefited your company? Well, if I talk about the percentage first, so RCM in transport industry 5% is charged on freight billing, and in FCM 12% is charged. So in RCM we did not used to get any input credit, so we were just wasting our tax money. But in FCM we can avail the tax that we pay to our vendors, and this helps in reconciliation and deduction in our taxation. There are some clients who only create vendor codes who are registered in FCM. There are several big players, I'll say. Friends, lockdown was something that nobody was prepared for. Nobody had seen this kind of a situation before. Thousands of trucks stranded on the highways, loaded with goods worth crores and crores, and drivers left to fend for themselves, with dhabas shutting down as well. So how did Pooja and Vandana tackle this situation? How did they deal with the pandemic, and how did they reach out to their drivers? We'll hear about this and much more coming up right after this short break on iShare's Nai Soch presents Trans India, Real People, Real Emotions. नमस्ते, मैं हेमप्रभा देवी हूँ। मैं आसाम से हूँ।
1996 से मैं ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हूँ। मैं मेरा ड्राइवर और उनका फैमिली से मेरा काम के लिए उनका साथ हमेशा जुड़ा रहती हूँ। और एक बार मेरा एक ड्राइवर मिडुल और उसका बेटा का बड़ा बुखार हो गया था। मिडुल की बीबी गीतांजलि समझदार थी। उसने हर महीने कुछ सेविंग कर रखी थी। एक एक करके 3 अलग डॉक्टर से कंसल्ट किया। इलाज लंबा चला और महंगा भी। वो अच्छे डॉक्टरों के पास प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेटे का इलाज कर पाई। हर माँ बाप चाहता है उनका बच्चा खुश रहे और हेल्दी रहे। मेरा दूसरा ड्राइवर नीलकंठ, उसका ब्रह्मपुत्र का बाढ़ में उनका घर पूरा खराब हो गया। उनका बीबी डालिमी ने थोड़ा थोड़ा करके हर महीने थोड़ा पैसा सेव किया था। वो बात नीलकंठ को पता ही नहीं था। उन्होंने घर को फिर से बनाया, दीवार को मजबूत किया, फर्श को मजबूत किया और फिर से घर बहुत अच्छा बना। ये 2 फैमिली का पास मुसीबत का टाइम पैसा का कोई कमी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मेरा भी थोड़ा सा हाथ है। मैं मेरा ड्राइवर का सैलरी उनका वाइफ को देती हूँ, क्योंकि वाइफ रेस्पॉन्सिबल होता है और सैलरी को सेविंग्स करता है। ये मेरा नया इनोवेशन है और ये मेरा नया सोच है। बिजनेस तभी बढ़ेगा जब सोच बदलेगी। क्या आपने भी कोई नई सोच अपनाई है? iShare NayiSoch.com पे हमें बताइए। याद है, कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था। लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है। डबल गारंटी। पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7, जो आता है डबल गारंटी के साथ। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए ट्रक वापस। नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद। खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी, तो हुई ना डबल गारंटी। Welcome back friends to iShare's Nayi Soch presents Trans India, Real People, Real Emotions. We are talking to Vandana and Pooja Ladda of Shivani Carriers. Vandana ji, जब लॉकडाउन हुआ, as I said earlier, nobody was prepared for this. आपने immediate steps क्या लिए उस वक्त and what was the thought process? देखिए, शुरू के 1 वीक तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पहला दिन तो अगर था तो क्या होगा, कैसे होगा, हाउ विल द थिंग्स गेट मैनेज्ड, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन टचवुड हम 3 लोग एक ही घर में साथ थे। हमने अगले दिन से प्लानिंग की। सबसे पहली चीज़ थी कि सब लोग सेफ रहे, जो भी ड्राइवर्स ऑन रोड हैं, जो स्टाफ मेरे यहाँ कैंपस में रहता है, सब सेफ रहे और बेसिक फूड सप्लाई उनको अनइंटरप्टेडली चलता रहे। तो पहले दिन का तो टास्क ये था कि फूड सप्लाई को सफिशिएंट स्टॉकिंग कर ली जाए। जहाँ पे ऑन रोड व्हीकल्स थे उनको सबको हमने जैसे प्रोवाइड करवा सकते थे वो करवाया। और दूसरा था कि उनको मेंटल इंश्योरेंस देना कि वो सड़क पे हैं लेकिन असुरक्षित हैं ऐसा महसूस नहीं करें, क्योंकि उनकी फैमिली उनसे बहुत दूर थी। तो एक काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी थी। तो फर्स्ट वीक एज वी आर इन द FMCG एंड इसेंशियल कमोडिटीज़, हमको 1 वीक के बाद तो अपने ऑपरेशन चालू करने पड़े थे। लेकिन पहला वीक हमने पूरा इसी में स्पेंड किया कि मैं, लड्डा साहब और पूजा, हम तीनों रोज कुछ स्टाफ से, कुछ ड्राइवर्स को कॉल करते थे और उनसे बात करते थे और उनको मेंटली सपोर्ट करते थे। ये पहला टास्क था हमारा। उसके बाद जब हमने फ्लीट ऑपरेशन चालू किया तो उसके बाद ड्राइवर्स को रेडी करना कि आप चलाएं गाड़ी, वो भी एक टास्क था। हमने उनको पहले पूरी हेल्थ अवेयरनेस की ट्रेनिंग फ़ोन के द्वारा ही दी। उनके लिए हमने अप्रैल के लास्ट वीक में कोविड इंश्योरेंस हर ड्राइवर्स के लिए खुद ने लिया। पहले हमने कोशिश की थी कि अगर गवर्नमेंट इसको
कोरोना वॉरियर के रूप में ले लेती अगर ट्रक ड्राइवर्स को, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो हमने पर्सनली कंपनी लेवल पे सब ड्राइवर्स के लिए 1 लाख रुपीज़ का अश्योर्ड इंश्योरेंस कोविड के लिए लिया और उनको एक मेंटली काउंसलिंग और सपोर्ट दिया कि हम आपके साथ हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं पूरे रास्ते में। और एंड पॉइंट पे क्लाइंट के यहाँ भी हमने बातचीत की कि ड्राइवर्स को फैसिलिटी दी जाए, खाना पीना, जो रास्ते में ढाबे भी बंद थे, खाना नहीं मिलता था, बहुत सारी समस्या थी। तो उनमें हम जो भी बेस्ट एफर्ट कर सकते थे वो हमने पूरा ध्यान दिया ताकि ड्राइवर सुरक्षित रहे और ऑपरेशन भी चलता रहे। So as she mentioned earlier that we have 15 branches pan India. So we try to locate which vehicle is near which branch, and then through our branch managers we made sure that food is available to all the drivers. That was the utmost priority. Then after that there were certain the day lockdown was declared, there were certain vehicles which were carrying non-essential products. So those came to standstill, and it took a couple of days to make them reach the nearest point, because of course we could not deliver the material due to non-essential commodities. So we had to search for a safe house for them so that they can stay over there. And in meanwhile we started rerouting the vehicles which were empty, and we dedicated them to carry essential commodities like sanitizers, food grains, atta, etc., dal. So yeah, we dedicated to all these commodities because that was the requirement at that time. कितना टाइम लगा ऑपरेशंस को नॉर्मल होने में? Around 2 months I guess it took to normalize, because the initial 2 months in April and May it was complete lockdown. So yeah, at that time we were operating only in essential commodities, and after that in June non-essential was also like it opened slowly. Not all factories did not open immediately. So yeah, a bit of a fleet which were dedicated for non-essential commodities only. A few for bulkers. We are specialized in transportation through bulkers, so they were at standstill. So when non-essential commodities started to start their operation, that is when our non-essential the bulkers started operating, and it took about 20 to 25 days for them to get utilized fully. Pooja, as you said, you're working dedicatedly with 3 clients. What are the typical challenges that you face while working with them? Operation challenges, I can say that transit time adherence is very important, because there are certain orders that we get are particularly related to export. So when it comes to export, the vessel sailing date, we cannot miss that. So that is when we face the major challenge to deliver goods timely, because they need stuffing time, then shipping time, transit time from the CHA to the vessel. So that is the critical orders that we get, which we have to meet, and I monitor it personally. Otherwise the other orders, the domestic ones, our managers also manage that, to make them understand the criticality of export orders, because they don't understand what is export, what is import. What are your future plans for the company? बस आगे बढ़ते जाना है। देखिए 13 व्हीकल से 170 पे पहुंचे हैं, आगे बढ़ना है, सस्टेन रहना है और काम करना है, बस यही पैशन है। Well, I plan to make it more digitized, because in future data analysis will be really important, because for example, I'll take tires. There are various companies who approach us to get tire data, how much there are various types of tires, models of tires, so they need data that which tire performed well. So we try to keep that data and provide them so that they can use it in their research and provide a better product. So that data management is really important, and we can do that only through good technology and upgrading ourselves. It's like digital upgradation. Okay, a final question for both of you. What would be your message to all the women and the young girls out there who are hesitant to join their family business? देखिए डॉटर या सन जो भी है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में बच्चे इस बिजनेस में आना नहीं चाहते हैं, लेकिन वी आर ब्लेस्ड कि बच्चे आ रहे हैं, और उसके लिए मुझे लगता है कि उनको वर्क एटमॉस्फेयर और चैलेंज देना
सबसे बड़ी बात है और वो हम दे पाए हैं थैंकफुली। दूसरा मुझे लगता है जिस समय मैंने ज्वाइन किया था हेजिटेशन था मेल फीमेल का, लेकिन अब एक एक्सेप्टेंस आ गया है। तो लड़का है या लड़की है, इस बिज़नेस में आना है तो उसमें जेंडर का कोई हेजिटेशन अब नहीं हो सकता है। Can you also mention about दो और youngsters जिन्होंने ज्वाइन किया? जो मैंने गिरीश, नॉट ओनली पूजा, मेरे ब्रदर इन लॉ के 2 बेटे, उन दोनों ने भी हमारे बिजनेस को ज्वाइन किया है, जिसमें से एक यूएस में जॉब करता था, यूएस से मास्टर्स किया, वहाँ पे जॉब किया, उसके बाद वो हमारे साथ आया है। तो वी आर ब्लेस्ड कि अब नेक्स्ट जनरेशन के 3 बच्चे हमारे साथ हैं। पहले हेमंत और मैं 2 थे, अब हमारी मुट्ठी पूरी बन गई है। Well, I'll say that do not run away from this business. Enter this business because women are making their mark in every field, and why not transportation business? And it is the millennials' time, I'll say. but last question, अभी मेरे को बस ख्याल आया, there is so much of women empowerment in your company. Pooja is there, you're there. How much say does Hemant have in the business? Does he have a say in the board? Well, I'll say that accounts में तो नहीं, no, that's her area. He shouldn't enter her area. Thank you so much. That was wonderful. Well, friends, that was a conversation with Vandana and Pooja Ladda of Shivani Carriers. As we have seen, these 2 women are handling pivotal roles in their company, clearly making them the flag bearers of Aishar's Nayi Soch. And next week on Trans India, we will be talking to a person who is looking to transform this industry. While many see him as stiff competition, he says that he is here to uplift not just his company but the industry on the whole. And this person is not just looking to transform the industry. His main aim is to transform the drivers, who he calls as pilots. And he says that once this segment is transformed, it will change the entire road transport industry. Next week, we shall be talking to Deepak Garg, the founder of Rivigo, and knowing what the relay model is all about and how he is looking to change the industry and take up the challenges. Stay tuned and keep watching Trans India. And before you go, don't forget to subscribe to our channel and share the message around. Until then, stay safe. Jai Hind.